As we were discussing the fundamental duties, and now I would like to start with the constitutional provisions which are related to the fundamental duties. And as I told you that in the original constitution there were no fundamental duties, and by 42nd Amendment this has been put in the Constitution Part 4A as Article 51A. So Article 51A is having 10 clauses initially, but now one more clause after 82nd Amendment has been added upon. So कहना चाहिए आज की डेट में we have 11 fundamental duties. Now 51A subclause A, that is the very first fundamental duty, and that duty is for the citizens of the country, that is to abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem. जो हमारी सबसे पहली ड्यूटी दी गई है, मूल कर्तव्य है जो इस पार्ट 4A में, वो क्या है कि जो हमारे संविधान के प्रावधान हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हमें अवॉइड करना है, उसको फॉलो करना है। हमें अपने जो देश में हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके आइडियल्स हैं, उनको रेस्पेक्ट करना है, और साथ ही साथ जो हमारा नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है, हमारा राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान, इसकी भी हमें पूरी तरीके से रेस्पेक्ट करनी है। So, in that respect, what are the judicial view on these issues? What are the laws which have been made? I'll be discussing. First of all, I would like to give a brief summary of the duties which have been incorporated by 42nd Amendment. So, this is the first duty, to respect the national flag, national anthem, and the ideals and the institutions of the country, as well as to abide by the constitution of the country. Then the second duty, which is also a duty of the citizen, that is to cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom. जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनमें भी इंस्टिल थी ये चीज़ें कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं और हम अपने देश को किस तरीके से स्वतंत्र कराएं, हम अपने मदरलैंड को कैसे इमेंसिपेट कर रहे हैं, सेलेब्री के जो हम फंसे हुए थे, गुलामियत में फंसे हुए थे, उससे कैसे आगे बढ़े। तो जो चीज़ें उन लोगों को इंस्पायर की इस नेशनल स्ट्रगल के लिए, फ्रीडम के लिए, उनके क्या आइडियल्स थे, उनके क्या नोबल आइडियल्स थे, उन सभी को हम चेरिश करें और साथ ही साथ हम उनको फॉलो भी करें। ये हमारी सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी है। अभी हम इस पर भी आएंगे कि कुछ ड्यूटीज़ ऐसी हैं कि उसमें क्या किया जाए एग्जैक्टली, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, किस तरीके से फॉलो किया जाए, ये अपने आप में एक कठिन समस्या हो गई है या हो रही है, या लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है कि इसमें हमें करना क्या है। But anyhow, this is the second fundamental duty of every citizen, to cherish and follow the noble ideals that inspired the freedom struggle, national struggle for freedom. Then 51A subclause C, that is the third duty of the citizen, that is just to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of the country. Now, this was the duty which was the first duty designated by the Swan Singh Committee, as you know, and this is a preeminent obligation of every citizen. हम सबका ये एक कर्तव्य है, हम सबके ऊपर एक कहना चाहिए एक भार है ये, that we have to uphold the sovereignty of the country. We have to uphold the unity and integrity of the country, because we are a democratic nation. India is a democratic country, and in that democracy, we all know that democracy is the government of the people, by the people, and for the people. So the sovereignty resides and the sovereignty lies in the citizen. हम आप as a citizen ही sovereign है। तो सबसे पहले हमें अपनी sovereignty को protect करने के लिए क्या करना होगा? We have to protect the unity and integrity of the nation, and only then we can find that the nation can develop. Nation has to live properly. For that, this unity and integrity of India has to be upheld and has to be protected by the citizens of the country. So this is the third duty which is enshrined in the part 4A of the constitution of every citizen. हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने देश की संप्रभुता, उसकी एकता, उसकी अखंडता को बनाए रखे, उसको प्रोटेक्ट करे, उसको कैसे आगे बढ़ाए,
इस बारे में उसे काम करने हैं। उसको किसी भी ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना है जिससे कि देश की स्वतंत्रता, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है, उसकी एकता और अखंडता को किसी तरीके से कोई नुकसान पहुँचे। हम सभी टीचर्स हैं और हमको ये चीज़ें कम से कम अपने स्टूडेंट्स में भी इंस्टिल करनी चाहिए कि ऐसे उदाहरण दोबारा से हमारे सामने ना आए, जैसे कि कुछ बीच में आप लोग सभी जानते होंगे, और इस फोरम पे वो डिस्कस करना ठीक भी नहीं है। लेकिन एकता और अखंडता की अगर हमें बात करते हैं तो भारत की हम बात करें, विच इज़ इंडिया एंड विच इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट। Then 51A subclause D, that is the fourth duty of every citizen, is to defend the country and to render the national services when it is called upon to do so. क्योंकि कई तरीके की कैलेमिटीज़ आती हैं, कई समय की समस्याएं आती हैं, कई तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, कुछ मैन मेड होती हैं, कुछ गॉड मेड होती हैं, कुछ क्रिएटेड होती हैं, कुछ अनक्रिएटेड होती हैं, नेचुरल होती हैं, कुछ एबनॉर्मल सिचुएशंस होती हैं। ऐसी स्थिति में जो चीज़ें हम फोर्सी नहीं कर पा रहे हैं, या अगर हम देख भी पा रहे हैं, तो उन स्थितियों में किस तरीके से हम अपने देश को बचाएं, हम देश की सेवा के लिए आगे आएं। वो युद्ध की स्थिति हो सकती है, हमारे पास इतनी बड़ी फौज है, हमारे पास बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि हमें आपको एक सिटीजन होने के नाते देश की सेवा के लिए उसमें आगे आना पड़े। So this is only to defend our country. This is only to render our services for the national interest. And whenever we are called upon, so this becomes a fundamental duty for every citizen that they should go for national service. अभी पैंडमिक का समय है, इतना खत्म नहीं हुआ है, चल ही रहा है, थर्ड वेव is also coming up. So in that situation, as a national service, for performing or rendering this national service, what we can do? So we have to do that thing in order to save the nation, in order to serve the nation, so that the nation can develop. So this is one of the fundamental duty कि हम अपने कंट्री को सर्व कैसे डिफेंड करें, उसके लिए नेशनल सर्विसेज की जब जब ज़रूरत हो, जब जब हमें बुलाया जाए, तब तब हम उसके लिए आगे बढ़ें। देन 51AE जो हमारी पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी है हर सिटीजन की, वो दो पार्ट्स में है। जो पहला पार्ट है वो क्या करता है, वो दैट सेज अबाउट टू प्रमोट द हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड। जब फ्रैटर्निटी की बात हम करते हैं, एक भाईचारा की, ब्रदरहुड की बात करते हैं, सो अवर ड्यूटी एज ए सिटीजन इज जस्ट टू प्रमोट हार्मनी, कि हम सब में एक सहृदयता की बात करें, हम उसमें एक हार्मोनाइज, एक सामंजस्यता की बात करें, और एक ऐसी चीज को हम लेकर आए जिससे कि हमें लगे हाँ हम सब आपस में भाई भाई हैं। लेकिन किस किस काम के लिए? क्योंकि हमें अपने देश को ऊपर रखना है, इसके लिए कॉमन ब्रदरहुड की बात करें amongst all the people of India. They may be coming from any religion, they may be coming from any language, they may be from any regional or sectional diversities, because as I told you that India is a country which has various things which are there in diversified in nature. तो उन डाइवर्सिटी में हमें यूनिटी को किस तरीके से ढूंढना है, उस डाइवर्सिटी में हमें हार्मनी कैसे लेकर आनी है, उस डाइवर्सिटी में हमें कॉमन ब्रदरहुड कैसे लेकर आनी है, ये हमारे सिटीजन होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। और इसके लिए केवल कह देने से, कि जैसे कि हम लोग छोटे छोटे थे, आप लोगों ने भी सुना होगा, आप तो उम्र में हमसे काफ़ी कम है, कि जब हम छोटे छोटे थे तो हमें सिखाया जाता था स्कूल में, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस तरीके की चीज़ें, जस्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग और टू इंस्टिल दैट कॉमन ब्रदरहुड अमंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. So these are the points. It is we the people of India, it is we the citizen of the India, we have to think that how we can do this. केवल ये कह देने से कि मेरा देश महान है, महान हो जाएगा अगर हम सब उसमें महानता के काम ना करें। तो हमें कहाँ पर अपनी ड्यूटीज को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, हमें अपनी ड्यूटीज को किस तरीके से फुलफिल करना है, so that we can promote this harmony. And for that, communalism etc type of the things, or the things which are really dividing the nation into various categories, चाहे वो कास्ट के नाम पे हो, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, चाहे वो लैंग्वेज के नाम पे हो, रीजनल हो, सेक्शनल हो, किसी भी तरीके की चीजें हो, उन सब से दूर हटके हमें किस तरीके से चीजों को हार्मोनाइज करना है,
ये हमारी ड्यूटी है, सो दैट द नेशन कैन डेवलप। सो 51A सब क्लॉज ई जो पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये दो पार्ट्स में है। पहला पार्ट तो कॉमन ब्रदरहुड की बात करता है, एंड द सेकेंड पार्ट सेज दैट टू renounce the practices derogatory against the dignity of women। ये स्पेसिफिक ड्यूटी है ऑफ एवरी सिटीजन कि वो महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार ना करे कि जिससे उनकी गरिमा के अगेंस्ट में हो, उनकी गरिमा का कहीं नुकसान हो, और इस तरीके की जो भी प्रैक्टिस हैं उनको सबको त्याग दे। तो अगर इस तरीके की प्रैक्टिस जारी रहेंगी तो महिला की जो गरिमा है वो ठीक तरीके से नहीं आगे आ पाएगी, और वो समय पर अपना काम नहीं कर पाएंगी। या अगर इक्वालिटी की हम बात करते हैं, एक समानता की बात करते हैं, और उनको अपना गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार ही नहीं मिल पा रहा है, तो वो किस तरीके से सोसाइटी में सामने आएंगी या समाज में अपने हिस्सेदारी निभाएंगी। इस सब के लिए ज़रूरत है कि एक माइंडसेट जो हमारा बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं चेंज किया जाए, एंड वी हैव टू renounce those practices which are against the or which are derogatory against the dignity of the women. So this is one of the fundamental duty of every citizen, which is the fifth duty of the citizen of the country. Then after that, if we see that there are some more duties of the citizens in the country under these fundamental duties. As I told you, there are only 10 duties initially. So we see that the constitution makers, why they have not incorporated these duties in the constitution itself, because the constitution makers they had the vision where you see that they were thinking of having a perfect harmony amongst the people। ये ड्यूटी को हमने पहले क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो जानते थे कि हम लोग तो हार्मोनाइज हैं ही, हम लोग सब एक आपस में मिले जुले हैं, सामंजस्यता है, एंड देयर इज टॉलरेंस एवरीवेयर, हर जगह एक टॉलरेंस की बात हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा जिसको कि हम सोचें कि गलत हो सकता है हमारे नेशन के लिए। तो उनके दिमाग में कहना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट करने की कोई बात नहीं आई। जब हम ये पांचवी ड्यूटी देखते हैं जिसमें कॉमन ब्रदरहुड की और हार्मनी की बात होती है, तो ये रिलेट करने की इच्छा होती है कि क्यों नहीं ये सब चीजें उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई। सो द बेसिक रीजन में भी कि वो उस समय जो उनका विजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, they would be thinking that we are having a perfect harmony amongst the people and there is tolerance among the people everywhere. But however, you see that intolerance has become more and more viral, whether our country has had been really intolerant or not, and this novel exhortation जो हमने सभी ने सुना, वसुधैव कुटुंबकम का, जो हम कॉमन हार्मनी और कॉमन ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, तो हमारा तो देश ही था जो वसुधैव कुटुंबकम के एक आइडियल पे, जो एक यूनियन इसकी एक यूनिक इथिक्स कह सकते हैं, उस पर चलता था कि दैट एंटायर वर्ल्ड इज ए फैमिली, कि समस्त दुनिया जो है वो एक फैमिली है, एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले वो क्यों सोचते हैं इस चीज को कि हम अपने संविधान में इस तरीके की कोई ड्यूटी रखें जिसमें हम अपने ही लोगों से कहें कि वो हार्मनी को प्रमोट करें या वो कॉमन ब्रदरहुड की भाषा को प्रमोट करें। बट दिस वाज द थिंग दैट now we see that intolerance has writ large, and we see that more and more persons, they are becoming intolerant in various views. And I'm reminding here one of the statement or observation which has been made by Justice M.N. Venkat Chalaiya। M.N. Venkat Chalaiya जस्टिस जो थे वो एक कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बैठी थी, उसके चेयरमैन भी थे और उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के वो जस्टिस भी थे। तो उन्होंने कहा एक बार कि ये अपने आप में बहुत ही आयरनिक है कि जो कंट्री जिसका जिसका दिल, जिसका दिमाग, जिसका घर लोगों के लिए खुला हुआ है, बेसिकली ऑन दिस वसुधैव कुटुंबकम, दे आर थिंकिंग ऑफ बीइंग और दे आर बीइंग पेंटेड एज इनटॉलरेंट नेशन, कि वो इतने ज़्यादा इनटॉलरेंट हो रहे हैं। एंड दिस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज जो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, उन लोगों को इस तरीके के आइडिया, जैसा अभी आप ही में से एक का क्वेश्चन आया था कि बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल thought has been changed after 1990. So really it has been like that कि political opportunities these should not de-integrate the idea of India that we are cherishing the tradition of tolerance which we are following since time immemorial, because nation is big, and what we see sometimes man becomes
small and too sharp to sustain it legally. हर चीज़ के पहले हमें ये देखना होगा अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कि हम ड्यूटीज़ परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्र बड़ा है, हम बड़े नहीं हैं, हम राष्ट्र से हैं, राष्ट्र हमसे नहीं है अभी। हम सब मिलके राष्ट्र बना रहे हैं, हमारे अकेले से राष्ट्र नहीं बन रहा है, जब तक सब मिलेंगे नहीं तब तक राष्ट्र नहीं बनेगा. सो वी हैव टू थिंक इन दैट वे, because this has been a tradition, we have cherished this tradition for the time immemorial. So we should promote harmony and the spirit of the common brotherhood amongst all the people of India, which is one of the fundamental duty under article 951A sub clause E, as the fifth fundamental duty in the Constitution of India. And then what we find is that after this common harmony, there is another duty which has been incorporated as part in part 4th of the Constitution, that is relating to the value and preservance of the rich heritage. Rich heritage of what? Rich heritage of the country's composite culture. ये हमारी छठी फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसमें हम बात करते हैं कि हाँ, हमारी ये ड्यूटी जो इम्पोज की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, फंडामेंटल ड्यूटी हर किसी नागरिक के लिए, वो ये है कि हमें जो हमारे रिच हेरिटेज है, अब हेरिटेज क्या है हमारे, बहुत सारे ऐसे हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, बहुत सी हमारी ऐसी फ्लोरा फौना जो चीज़ें हैं जिसको कि हमें प्रिजर्व करना है, उसको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है. तो ये अपने आप में हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन सभी ड्यूटीज़ को पूरी तरीके से फॉलो करें, उनका पालन करें. और जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, जैसा कि अभी मैंने बताया वसुधैव कुटुंबकम वाला, तो ये जो है अपने आप में दिखाता है कि हमें किस तरीके से जो सोसाइटी में एक इंटॉलरेंस आ रहा है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है. कई बार आप देखिए मॉब लिंचिंग के साथ हो रहा है, या काउ विजिलेंटिज्म के साथ हो रहा है, गाय की हत्या हो रही है तो कहीं आदमियों का ही हत्या कर दी जा रही है. तो ये सब क्या है, ये हमारे जो हेरिटेज है. अगर हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है, तो ये एक एक आपको जो दिखाया जा रहा है, ये हमारी वैल्यूज हैं कहीं ना कहीं. तो हमें अपनी वैल्यूज के आगे उनको प्रिजर्व करना है, उनको संभाल के रखना है, सहेज के रखना है. ये हमारा कंपोजिट कल्चर है, इसमें कहीं किसी भी तरीके के डिमार्केशन की, डिवीजन की आवश्यकता नहीं है. अगर एक व्यक्ति कह रहा है कि हमारा धर्म है, तो दूसरे को उसको सहयोग करना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके से गलत नहीं करना चाहिए. तो चाहे वो काउ विजिलेंटिज्म हो या मॉब लिंचिंग हो, वो दोनों ही अपने आप में गलत हैं, और वो कॉमन ब्रदरहुड या हार्मनी को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है. एंड वी हैव टू थिंक ओवर that we have to value and preserve our rich heritage for making the country's composite culture survive. And this is the duty of the citizens. They must have the high sense of duty. उनमें एक ऐसी भावना अपने आप में इंस्टिल होनी चाहिए कि ये उनके राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, ये उनका दूसरों के प्रति कर्तव्य है कि जिसको फॉलो करें. अगर वो दूसरों को सुरक्षित रखेंगे तभी दूसरे उनको सुरक्षित रखेंगे. एंड सुरक्षा जो प्रोटेक्शन वो है, वो दूसरों को करने का मतलब ये नहीं है कि केवल दूसरे ही उससे सुरक्षित हो रहे हैं, प्रोटेक्टेड हो रहे हैं. अगर हम दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे तो दूसरा हमें प्रोटेक्ट करेगा. सो दिस इज द थिंग विच हैज कम फ्रॉम दीज टू ड्यूटीज, पांचवी और जो छठी ड्यूटीज है, जो एक रिच हेरिटेज को, कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए है और कॉमन ब्रदरहुड के लिए है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट in view of making our nation to survive, our polity to survive, and as a fundamental duty. And this is also having a deep root in the democratic values in the society जो हमारे यहाँ चलती है. And then जो seventh duty है हमारी, that speaks about the duties of a citizen, that is to promote and improve the natural environment. That includes the flora, fauna, forest, lakes, rivers, wildlife, and to have the compassion towards living creature. जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या कहती है कि हमें अपने जो साथ में भाई बंधु हैं, वो केवल कॉमन ब्रदरहुड या हार्मनी उसी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम सांस ले रहे हैं, जहाँ हम जीवित हैं, वहाँ पर भी जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है. नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? हमारे जो फॉरेस्ट हैं, नदी हैं, तालाब हैं, लेक्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, जो
फ्लोरा फोना है हमारे, और जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, चाहे वो जानवर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, जो भी हैं, उनके प्रति हमें कंपैशनेट होना है, उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है, उनके हमको ग्रोथ को इम्प्रूव करना है. So this is a duty of every citizen to protect and improve the natural environment. और आज की डेट में अगर देखें आप, तो environment हमारा कितना प्रोटेक्ट हो रहा है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारा कितना प्रोटेक्ट हो रहा है. ये जो फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम है, ये नैनीताल की वादियों में चल रहा है, और वहाँ पर जो लेक है उसको कितना लोगों ने प्रोटेक्ट किया, क्योंकि ये तो वर्चुअल चल रहा है. अगर आप लोगों को मौका मिले नैनीताल जरूर जाइए और वहाँ की उस लेक को भी देखिए, और उसके बाद जुडिशरी ने जो स्टेप उठाए हैं उनको भी आप देखें, तो आपको पता चलेगा कि उस लेक का क्या हाल कर दिया था, और अब इस समय उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी ने अपने हाथ पैर फैलाए हैं, और वो किस तरीके से उसमें काम कर रहे हैं. तो ये केवल एक लेक की बात नहीं है, ऐसी कई लेक हैं. गंगा की अगर हम बात करें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि गंगा प्रदूषण हो रहा है, या सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखते हैं तो ये अपने आप में गलत हो रहा है, और उसको हमारी एज ए सिटीजन हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम उसको इम्प्रूव करें, हम उसको प्रोटेक्ट करें, और साथ ही साथ जो हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं उसके प्रति भी हम कंपैशनेट रहें. तो लिविंग क्रिएचर्स की जहाँ तक अगर बात करते हैं, या वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, एक उदाहरण मैं और दूंगी आप लोग को पहाड़ों का ही, कि जहाँ पर बाघ, जिसको हम लेपर्ड भी कहते हैं, वो एक आम नॉर्मल चीज़ है, और लोग बाग शाम को अपने घरों से निकलना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो कहीं पर भी आके किसी को भी अटैक कर सकते हैं. तो ठीक है, हमें उनके प्रति कंपेशनेट होना चाहिए, हमें एज ए सिटीजन हमारे ये ड्यूटी है कि हमें ये सब करना चाहिए. लेकिन कहीं ना कहीं पर ऐसा हमें देखना है कि हम उसको किस तरीके से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करें, कि हमारा जो राइट टू लाइफ है वो भी इन्फ्रिंज ना हो, है ना. तो हमारा जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है वो भी इन्फ्रिंज ना हो. सो द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, because they were the men of great values and vision, but they couldn't. सुखदेव खुमरा जी, अगर आप अपने को म्यूट कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि बाकी लोग शायद सुन रहे हैं. अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं. थैंक यू. तो सबसे बड़ी बात जो ये ड्यूटी है हमारी, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव द कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है. और अगर ये चीज़ डिस्ट्रॉय होती है, अगर हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, तो ये सबका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान हम ही पर लौट कर आए. अगर हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है, तो उसका नुकसान किससे होगा? वी द पीपल, हम पर होना है. अगर हमारे जो फ्लोरा फोना ठीक तरीके से हम उसको सेव नहीं कर पा रहे हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो इसका नुकसान किसको होगा? द डिस्ट्रॉय और डैमेज टू ऑल दीज एनवायरमेंटल थिंग्स दैट इज रिवर्टिंग बैक टू अस, वो हम ही पे वापस लौट कर आएंगी. एंड यू सी दैट दिस ऑल हैज बीन डन बाय द ह्यूमन बीइंग ओनली, in order just to have the greed of the human being, greed to have more and more physical comforts and luxuries. These are the things. जो फॉरेस्ट हैं वो काटे जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स आ रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे. तो अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसका रिजल्ट जो होगा वो हम ही को आपस में झेलना होगा. उसके लिए कहीं से कोई दूसरे लोग नहीं आ रहे हैं. And that's why we see that there are various laws which have been enacted. I will be discussing those, but this is the duty that we have to protect, we have to improve the natural environment, which includes various things, including this living creatures also. Then after that, the eighth fundamental duty of the citizen is to develop scientific temper, and that scientific temper which relates to the humanism and spirit of इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. तो हर किसी सिटीजन में ये एक अपने आप में फंडामेंटल ड्यूटी है, जो 8वीं ड्यूटी की तरीके से 51A सब क्लॉज H में दी गई है, कि वो ह्यूमनिज्म जो है एक मानवतावाद या मानव उसका दृष्टिकोण को अपनाते हुए उसकी स्पिरिट के साथ वो चीज़ों को काम करे.
हर किसी में एक साइंटिफिक टेम्पर एक डेवलप हो, वो चीज़ों के साथ क्यों क्या कैसे उसके एनालिसिस करे, उसके साथ अपने आप को आगे बढ़ाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एम्बिगुअस तो हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे कहना चाहिए कि पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। और ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जब तक हम इस बारे में सोचेंगे ही नहीं तो हम करेंगे क्या। इसलिए इट इज़ रिक्वायर्ड दैट वी नीड टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, वी नीड टू डेवलप द ह्यूमनिज्म, द स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म. This is one of the duty of the citizen. Then ninth duty is to safeguard the public property and to abjure violence. कि हमें अपनी जो public property है उसको सेफ करें, और अगर किसी तरीके का कोई वायलेंस हो रहा है तो उसको रिफ्यूज़ करें, उसका डिनाइल करें, उसको एब्श्योर करें. दिस इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी. तो पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो पानी और इलेक्ट्रिसिटी का ही मामला हो, वो हमारी संपत्ति जो है रेलवे की संपत्ति भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो हमें उसको सेफ गार्ड करना है, हमें अपनी संपत्ति तक सीमित नहीं रहना है. हमारी अपनी संपत्ति है वो तो हम एज ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी विल सेव, बट द प्रॉपर्टी ऑफ नेशन हु विल सेव दैट. जो नेशन की प्रॉपर्टी है उसको कौन सेव करेगा? मेरे पास मेरा एक पेन है, इसको मैं सेव करती हूँ क्योंकि ये मेरा है, मैं इसकी ओनर हूं, मैं इसको प्रोटेक्ट कर लूंगी. लेकिन वो संपत्ति जो नेशन की संपत्ति है जिसमें हम रह रहे हैं, उसको कौन सेव करेगा? उसको सेव करने के लिए हमारी ड्यूटी है दैट वी हैव टू सेवगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड वी हैव टू एब्ज्योर द वायलेंस. अगर कोई वायलेंस हो रहा है तो उसको भी हम रोकें या उसको हम किस तरीके से रिफ्यूजल भेजें. Then the 10th duty which was there, which has been inserted by 42nd amendment to the constitution, is just to strive towards the excellence. कि एक्सलेंस की तरफ हम आगे बढ़ें, हर चीज में उत्कृष्टता की तरफ हम आगे बढ़ें, हर स्पेयर में, इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी. अपने अकेले के ही हम एक्सलेंस की बात ना सोचें, बल्कि हम कलेक्टिव एक्टिविटी की बात करें. अब क्योंकि हम लोग सब टीचर्स हैं, हम एक स्टूडेंट लाइफ से भी निकले हैं, और कई बार ऐसा होता है कोई अच्छी किताब होती है, हम उससे पढ़ते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं अगर कोई पूछता है, कुछ लोग होते हैं बताते हैं, कुछ लोग नहीं भी बताते हैं. तो अगर हम इंडिविजुअल अपने एक्सेलेंस चाहते हैं तो हमें इंडिविजुअल के साथ साथ एक कलेक्टिव इसकी एक्सेलेंस की भी बात सोचनी चाहिए, बिकॉज कलेक्टिवली विल बी गोइंग टुवर्ड्स द एक्सेलेंस, देन द नेशन विल डेवलप. क्योंकि जो भी ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, नेशनल डेवलपमेंट के साथ इनका सीधा रिलेशन है. इसलिए इंडिविजुअली अपने बारे में सोचना ठीक है, लेकिन कलेक्टिव एक्टिविटीज के साथ हमें उसको फॉलो करना. These are our fundamental duties so that the nation constantly rises to the higher levels of endowment and achievement. अभी हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज की जब रैंकिंग होती है तो रैंकिंग में क्या होता है, यूनिवर्सिटीज तो रैंकिंग में नहीं आ रही है, लेकिन अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो साइंटिस्ट जो हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनको कहते हैं हमें ये अवार्ड मिल गया, हमें वो अवार्ड मिल गया. व्हाट वी आर डूइंग कलेक्टिवली फॉर द इंस्टीट्यूशन, दैट इज आवर ड्यूटी. So if we are thinking in that way that we are the members in the higher education institution, so we can think on that. But if we are a member of the country, we are the member of the nation, we have to think large. हमें बहुत बड़ा सोचना होगा अपनी कंट्री के लिए, और उसके लिए हमें कलेक्टिवली काम करना होगा. हमें इंडिविजुअल पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है जितना हमें कलेक्टिवली काम करना है. बहुत से टीचर्स आते हैं, उनको क्या है आजकल तो जैसे एपीआई एफआईपी जो आपका चल रहा है, मुझे लगता है ये भी एपीआई का ही एक हिस्सा होगा या प्रमोशन के लिए जरूरत है. तो इसको दिमाग से अगर हम ये निकाल दें कि ये केवल प्रमोशन तक सीमित नहीं है, बल्कि आप इसमें कुछ ऐसा सीख के जा रहे हैं जिससे कि आप उस चीज को आगे भी बढ़ाएंगे, अपने स्टूडेंट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनको भी इन सब चीजों के बारे में जानकारी देंगे, तभी ये चीजें आगे बढ़ेंगी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी. और हम इंडिविजुअल अपना करते रहें, लेकिन साथ ही साथ हम कलेक्टिव एक्टिविटीज को भी ना भूलें. अगर मेरा काम पढ़ाना है तो पहली ड्यूटी पढ़ाना है, दूसरा काम मुझे अपना बायोडाटा आगे बढ़ाना है. हम अगर हमें अपना सीवी स्ट्रॉन्ग करना है, देन वी हैव टू ऐड सम मोर टाइम, वी हैव टू गिव सम मोर टाइम फॉर दैट. लेकिन जो समय हमारा स्टूडेंट्स के लिए है वो समय स्टूडेंट्स के लिए है, जो समय हमारा अपने लिए है हम उसमें अपनी जो बाकी की चीजें हैं, लग्जरीज हैं, हम उनको छोड़ दें और हम अपने सीवी को बढ़ाएं, हम अपने बायोडाटा को बढ़ाएं, हम अपना काम करें. सो इंडिविजुअली वी कैन डू
but collectively we have to think about striving for excellence in all these spheres of life. This is not to be confined only to the higher education or teaching or study or publication. ये यहाँ तक सीमित नहीं है, ये हर मामले में आगे आ सकता है. And this is only for the purpose that our nation, it should constantly rise, it should develop, it should reach to the heights, or it should achieve the things which the other countries are achieving or with the other nations are achieving. आज ओलंपिक्स हो रहे हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, we are just trying to see कि कितना मेडल हमारे पास आ रहा है, आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, हम लिस्ट में कहाँ पर हैं. छोटी छोटी सी कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन एक स्टेट से भी कम है. यूपी कितना बड़ा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन इतनी है कि कई कंट्रीज की पॉपुलेशन इतनी नहीं, उसके बावजूद भी हम ओलंपिक में एक पदक के लिए केवल देख रहे हैं कि हाँ ये मेडल कुछ मिल रहा है हमें या नहीं मिल रहा है. सो आर वी थिंकिंग टुवर्ड्स द एक्सीलेंस कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली? नो, वी आर नॉट. तो ये हमारी ड्यूटी है, हमें नेशन के लिए कुछ करना है, सो दैट वी कैन अचीव ऑल द हायर लेवल्स with our endeavors, with our work, with our duty. And finally, the 11th duty, which has been inserted by 86th Amendment to the Constitution in 2002. It was not initially in the Constitution by 42nd Amendment, but it has been inserted by 86th Amendment to the Constitution, and that was basically to provide the opportunities for education to the children or to the ward between the age of 6 to 14 years. 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा है उनको देने के लिए ये ड्यूटी सिटीजन पे नहीं है. अगर कहा जाए ये ड्यूटी है पेरेंट्स की, ये ड्यूटी है उनके गार्जियंस की कि अपने बच्चों को वो किस तरीके से स्कूल में भेजें. तो ये मैं नहीं कह रही हूँ कि वो जो पेरेंट्स हैं या जो वो गार्जियंस हैं वो सिटीजन नहीं होंगे, लेकिन अदरवाइज भी अगर ये ड्यूटी को हम देखें, इसकी अगर लैंग्वेज को देखें, देन इट इज related to the parents and guardians to send their child, to send their ward to the schools between the age of 6 and 14. Then after that, after these duties which are there, 11 duties have been incorporated in the Constitution. Then the question is that whether these duties are working properly or not, and what or what we think about the enforcement of these duties, as one of the questions that came from the participants, that these duties are not enforceable. Yes, it is very correct that these duties are not enforceable, and to make it enforceable or how to go about the working of these fundamental duties, in 1998 a committee was appointed that is known as Justice Verma Committee. एक Justice Verma Committee के नाम से एक कमेटी को अपॉइंट किया गया था 98 में. तो उन्होंने अपने जो ऑब्जर्वेशंस कमेटी ने दिए, दैट दे ऑब्जर्व दैट द ड्यूटीज बाय द इंडिविजुअल्स, these are the result of the dictates of social system and the environment in which we live or environment in which the citizens they are living, जिसमें वो रह रहे हैं, they are under the influence of their role models. जो उनके role models हैं उनके influence में वो यहाँ रहते हैं और इस तरीके से वो अपनी ड्यूटीज को ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. सो रिगार्डिंग द एनफोर्सिबिलिटी, द कमिटी सजेस्टेड दैट इट कैन बी बेटर अचीव्ड by providing not merely the legal sanction. जरूरी नहीं है कि उसके पीछे कोई कानून ही बनाया जाए, but it has to be combined with some social sanctions. सोशल सैंक्शन अगर उसके पीछे लगाया जाए, लोग आपस में सामाजिक तौर पर इस चीज़ों को सोचें. बहुत सारे एनजीओज बने हुए हैं जो कहते हैं कि हम इस के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, या एनवायरमेंट पोल्यूशन को रोकने के लिए काम कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं इस तरीके की फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स करने की, उनको वर्किंग में लाने के लिए भी एक सोशल सैंक्शन कहीं ना कहीं जरूरत है. उसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगा या imprisonment होगा. Social sanction is a must, and this has to be facilitated the performance of the fundamental duties by making certain ideals. कुछ ऐसे ideals हों जिनको कि हम follow करें, वही सोशल सेक्शन अपने आप में होगी. तो जो कमेटी थी वर्मा कमेटी, उसने ये तो कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया कि इनके पीछे कोई लीगल सैंक्शन होना चाहिए, बट इट आल्सो थॉट अबाउट
the social sanctions behind the enforcement of these duties. तो कुछ ऐसे एनजीओज हैं जो इस पे काम करते हैं. अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंट पोल्यूशन के लिए, तो बहुत से ऐसे एनजीओज हैं जो पोल्यूशन को रोकने के लिए काम कर रहे हैं. पोल्यूशन अपने आप में एक ऐसी चीज है जो किसी एक का नुकसान नहीं कर रही है, बल्कि एक ज्वाइंटली कंबाइंडली एक को कहना चाहिए एक कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत सारे लोगों का कलेक्टिवली नुकसान कर रही है. तो उसके लिए एनजीओ है वो पोल्यूशन को किस तरीके से रोका जाए, एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, फ्री एंड फेयर एनवायरनमेंट किस तरीके से मिले, उस पे वो लोग आगे काम कर रहे हैं. बच्चों को स्कूल में भेजा जाए, बच्चों की ड्यूटी है कि पेरेंट्स और गार्जियंस उनको स्कूल भेजेंगे. अगर नहीं भेज रहे हैं तो कुछ ऐसे एनजीओज भी हैं जो बच्चों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनके स्कूल में नाम लिखवा रहे हैं, उनको लेके जा रहे हैं. तो ड्यूटीज जो हैं इस तरीके से सोशल सैंक्शन के द्वारा भी की जा सकती हैं. और कुछ लोग अगर उनको लगता है कि जब दूसरे हमारे लिए वही काम कर रहे हैं तो हम भी वो काम कर सकते हैं, हम भी वो काम करेंगे. तो कहीं ना कहीं सोशल सैंक्शन इज इम्पॉर्टेंट. This was the viewpoint of Justice Verma committee in 1998. Then in 2002, another commission was appointed that was not only for the fundamental duties but to review the working of the constitution as a whole. पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग कैसे चल रही है उसको रिव्यू करने के लिए एक कमीशन 2002 में बनाया गया. जस्टिस एम एन वेंकट चलैया वो उसके चेयरपर्सन थे. और उनके चेयरमैनशिप में कमेटी ने जब इसको फंडामेंटल ड्यूटीज को भी देखा, then he has also endorsed whatever is said by Justice Verma committee ने जो कुछ कहा था उसको तो उन्होंने कहा ही कहा कि किस तरीके से किया जा सकता है. बट the additional points which this commission said is that we have to create some greater awareness of the constitutional provision. क्योंकि आज की तारीख में भी बहुत सारे ऐसे हमारे नागरिक हैं, बहुत से हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि संविधान भी कुछ होता है, संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. ये दिस इज अ सेकेंडरी थिंग, है ना. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कानूनों की जानकारी नहीं होती है, जबकि कानून में एक मैगजिम है दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि अगर आपको कानून की जानकारी है तो ये आपके लिए कोई माफीनामा नहीं है, आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए. लेकिन जहां तक हम संविधान की बात करते हैं, संविधान हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है. तो जो कमेटी का सजेशन आया था, एक रिकमेंडेशन आया था, वो ये था कि एक ग्रेटर लेवल पे अवेयरनेस फैलाई जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड हैं वो सिटीजन्स के क्या हैं वो सब उनको बताया जाए. और इसके लिए चाहे वो एजुकेशन के मोड से हो, चाहे वो मीडिया के थ्रू किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आगे इसको बढ़ाना, उनको अवेयर करना अपने आप में जरूरी है. एंड दिस ऑल्सो सजेस्टेड फॉर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द गवर्नेंस टू पे टैक्सेस एज ए फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपने उसमें प्रपोजल में दिया था, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था. लेकिन इस कमेटी के द्वारा इसको प्रपोज किया गया कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें इसको भी इंक्लूड किया जाए कि जो व्यक्ति हैं वो अपना टैक्सेस समय पर पे करें. Then this commission to review the working of the constitution that has also recommended this fundamental duty which is in addition to the earlier duties, that is the spirit of the family values and parenthood. जो एक फैमिली की हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, घर में कौन है क्या है, क्योंकि जो केसेस थे बहुत, ये 2002 का कमीशन था और उस समय तक बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे थे कि संपत्ति के लिए हत्याएं हो रही हैं. ये कोई नई चीज़ नहीं थी, पहले से भी चल रही थी, लेकिन बीच में कुछ बढ़ गया था तो फैमिली वैल्यूज़ लोग भूल गए हैं. उनको किस तरीके से उनकी इस स्पिरिट को जगाया जाए, या जो पेरेंटहुड चल रही है जो उसको किस तरीके से उनको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, उनको किस तरीके से ड्यूटी बाउंड किया जाए कि वो इन सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ें. तो ये एक एडिशनल ड्यूटी भी सजेस्ट कर दी थी इस कमीशन ने कि पेरेंटहुड की रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड और स्पिरिट ऑफ फैमिली वैल्यूज़ को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए एज ए फंडामेंटल ड्यूटीज़. Besides that, the duties of the industrial organization to provide the education to the children of their employees, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस थे, फैक्ट्रीज थे, उनमें आप देखिए कि क्या चल रहा था कि पेरेंट्स तो काम कर ही रहे हैं, उनमें भी इक्वल उनको रेमुनरेशन या इक्वल पे नहीं मिल रहा है. साथ ही साथ अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो भी साइट पर जा रहे हैं, छोटा मोटा वो भी काम कर रहे हैं और वो उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है. तो इसके लिए
एक ड्यूटी प्रपोज की थी इसी कमीशन ने कि वो जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो उनके वर्कर्स हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बच्चों को किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, इस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए, और ये अपने आप में एक ड्यूटी, इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। देन राइट टू वोट, अभी तक हम कहते हैं कि राइट टू वोट जो है स्टैट्यूटरी एक सिविल राइट है, लेकिन दिस हैज़ टू बी मेड अ ड्यूटी टू वोट एट इलेक्शंस, क्योंकि आज की डेट में अगर आप टोटल परसेंटेज देखें ड्यूरिंग इलेक्शंस कि कितने लोग वोट कर रहे हैं, क्या परसेंटेज है, जब जब रिजल्ट निकल कर आता है तो टोटल जो परसेंटेज है वो कितने लोग वोट कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वोटिंग जो है वो एक ड्यूटी की तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए, ना कि एक राइट की तरीके से। एंड दिस शुड बी the duty of every citizen to go and vote for the in the election, जिससे कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है गवर्नेंस की उसमें सुधार लाया जा सके, and they have to participate actively in the governance of the country, because ours is a participatory democracy, ours is a responsible governance. So in that way, this duty to vote at election is one of the basic fundamental duty which has been proposed by this committee. Now, regarding this enforcement of fundamental duties, these duties, as you are aware, not enforceable by the court of law. But you see that there are various legislations, there are various laws which have given the teeth to the fundamental duties and act as stringent or strict regulations. ये अपने आप में जरूरी नहीं है कि एनफोर्सेबल नहीं है तो ड्यूटीज आइडियल बन के ही रह जाएंगी, एक मॉडल रोल मॉडल ही बन के रह जाएंगी, उनको कोई फॉलो नहीं करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको फॉलो करने के लिए, ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा बहुत सारे कानून बनाए गए। For example, you see that there is Emblems and Names Prevention of Improper Use Act of 1950, कि जो हमारे राष्ट्र के जो हमारे एम्बलम्स हैं, जो नाम है, उनको हम किस तरीके से उसको इम्प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी भी आप देखते हैं कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जहाँ पर कि ड्यूटी नहीं है, माचिस की डिबिया पे गणेश जी मिल जाएंगे, या पटाखे पे गणेश जी मिल जाएंगे, या लक्ष्मी जी मिल जाएंगी, these are the things. But if this is going to be against the national interest, if it is going against the national डिस्ट्रक्शन, देन इट कैन नॉट बी यूज। की जो एम्बलम्स हैं, जैसे अशोक की लाट है, वो आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं, या इसी तरीके से और भी जो कुछ नाम हैं जो दिए गए हैं, उनको आप हर जगह से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एक्ट बना हुआ है, अगर इस तरीके का कोई इसका वायलेशन होगा तो उसमें पनिशमेंट और पेनाल्टी सब कुछ हो सकती है। इसी तरीके से नेशनल ऑनर एक्ट है 1971 का, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर, जो पद्मश्री हैं, पद्म विभूषण हैं, और जो इस तरीके के जो हमारे सिविल कहना चाहिए अवार्ड्स हैं, उनका भी इम्प्रॉपर यूज़ नहीं होगा, उसमें किसी कोई उसकी इंसल्ट नहीं कर सकता है। और पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है या नहीं पता है, लेकिन जो ये नेशनल हमारे सिविल अवार्ड्स हैं, चाहे वो चारों जो पद्मश्री की उसमें पद्म अवार्ड्स आते हैं, पद्म श्री, भूषण, विभूषण इत्यादि, और भारत रत्न, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस एक्ट का भी अपना पार्ट है कि किसी व्यक्ति को अगर इस उपाधि के साथ विभूषित किया गया है तो वो अपने नाम के आगे इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जबकि अगर आप देखते होंगे, आप भी कई कार्यक्रमों का हिस्सा होंगे कि वो कह देते हैं पद्मश्री सच एंड सच इज नाउ इनवाइटेड, और पद्म विभूषण ये और ये, और इनको ये किया गया। सो नाम के पहले इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दिस इज द एक्ट ऑफ 1971, दिस इज प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट। देन फ्लैग कोड इंडिया 2002 में एक फ्लैग कोड भी आ गया था इंडिया में, कि जो आपका राष्ट्र ध्वज है उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, उसका किस तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि जो पहली ड्यूटी आपको मैंने बताई, वो ड्यूटी थी कि हम अपने रिस्पेक्ट करेंगे नेशनल एंथम को और नेशनल फ्लैग को। तो जो फ्लैग है वो किस तरीके से हम उसको रेस्पेक्ट करेंगे, उसके कुछ कोड में वो नियम दिए हुए हैं कि कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं अभी भी बड़े इंटीरियर में अगर आप देखें तो सुबह से रात तक वो राष्ट्र ध्वज जो है वो लहराता रहता है।
तो ये अपने आप में गलत है, और कोर्ट के अकॉर्डिंगली एक समय है कि सुबह आप किस समय उसको ऊपर चढ़ाएंगे और शाम को किस समय आप अपने ध्वज को नीचे करेंगे। तो वो नियम है, उन नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी हम रेस्पेक्ट शो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इंडियन पेनल कोड है, जो बहुत बड़ा हमारा एक यूनिफॉर्म पेनल लॉ है। इसके अंदर बहुत सारे अगर ऑफेंसेस कोई करता है जो हमारे ड्यूटीज से रिलेटेड हैं, तो इसमें पनिशमेंट दिया जा सकता है। देन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है, या फिर SC ST का जो एक्ट 1979 उसमें आ गया था 55 के इस एक्ट के बाद। तो जब हम कॉमन हार्मनी की और ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, तो इक्वलिटी के आधार पे हर किसी के राइट्स को, सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। या फिर उसके साथ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट बना हुआ है 1967 का, कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो अपने आप में गलत है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, उसको उसको किस तरीके से रोका जाए, उसके लिए लॉ है। देन रिप्रेजेंट दिस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है। उससे 86 में तो एक कम्प्रिहेंसिव एक्ट बन गया है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उससे पहले अलग अलग वाटर एक्ट, वाटर पोल्यूशन प्रोहिबिशन एक्ट है, एयर पोल्यूशन प्रोहिबिशन एक्ट था, नॉइज पोल्यूशन को लेकर रूल्स बने हुए थे। तो ये हमारी ड्यूटीज का पार्ट है कि हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो एनफोर्सिबल नहीं है ड्यूटी, लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो उसमें प्रावधान किए गए हैं कि आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, और अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आप उसको वायलेशन में क्या पनिशमेंट हो सकता है। सो दिस इज देयर इन द एक्ट। देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इज देयर, वाइल्ड लाइफ एक्ट इज देयर। These are the acts which are related to the duties which we find in Article 51A, Clause A to K. Then Right to Education Act, Free and Compulsory Education Act 2009 में भी आ गया, 2002 में ड्यूटीज बनी, राइट्स भी, फंडामेंटल राइट भी बना, और उसके बाद ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी आ गया राइट टू एजुकेशन एक्ट का। तो कहने का मतलब ये है दैट दीज आर नॉट द ओनली एक्ट्स, देयर आर मैनी मोर एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस which are in existence, which are in extant besides these acts which I have naming here, जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जिसके द्वारा हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रावधान किया गया है कि उन फंडामेंटल ड्यूटीज को किस तरीके से एग्जीक्यूट कराया जाए, उसको किस तरीके से एनफोर्स कराया जाए, एक्टिवेट किया जाए, उनके लिए ये सारे कानून बने हैं। तो ये लॉज जो हैं ये फंडामेंटल ड्यूटीज को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं। Then it is not only the legislature which has done all these things, but besides the statutes, the judiciary is also reading these unenforceable and unenforceable duties with fundamental rights and the directive principles of the state policy. You see that Supreme Court of India in एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहाँ पर एक केस फाइल किया गया था। एंड the Supreme Court has said that the fundamental rights and fundamental duties should be given equal importance. इन दोनों को equal importance देना है। तो अभी तक तो अनएनफोर्सेबिलिटी की बात करते थे हम कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि लेजिस्लेचर ने कुछ एक्ट्स बनाए कि अगर उनमें से कहीं कोई वायलेशन हो रहा है तो पेनल्टी एंड पनिशमेंट किया जा सकता है। और अब अगली स्टेज जो इसमें आई वो हमने देखा जुडिशियरी किस तरीके से हेल्प कर रही है कि इनको एनफोर्स कराया जाए या इनको वर्किंग में लाया जाए। तो उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज शुड बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। इट्स नॉट मटेरियल दैट द फंडामेंटल राइट्स आर ओनली एनफोर्सेबल एंड duties are not enforceable, but these should be given equal importance so that if there is any violation of fundamental duty, then action has to be taken accordingly. So with a view to strike a balance between the fundamental rights and fundamental duties, Justice Ranganath Mishra, he was the Chief Justice of India, but Justice Ranganath Mishra, he himself went in the Supreme Court as a petitioner. And in that Ranganath Mishra versus Union of India जो एक केस की तरीके से फाइनली डिसाइड किया गया, then he addressed a letter to the President of India. उन्होंने एक President of India जो थे उनको एक letter लिखा that they should that President of India should pass the directions to all the state governments so that the state governments may do something to raise the awareness of the fundamental duties in the citizens. So how they could do it?
बाय एजुकेटिंग दैम, उनको एजुकेशन के थ्रू कुछ ऐसा कोर्सेज लागू किए जाएं, या जहां वो पढ़ रहे हैं उनमें इस तरीके की कोर्सेज में एक पार्ट बनाया जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज वो बच्चे पढ़ सकें, वो सिटीजन्स पढ़ सकें। तो अवेयरनेस फैलाना अपने आप में जरूरी है। सो दिस इन रंगनाथ मिश्रा, this writ petition, the Supreme Court has taken this case and has also directed that these fundamental duties should be made the part of the education system in the schooling system. तो जो NCERT के जो courses हैं उसमें कई जगह आप देखते हैं fundamental duties को भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको समझाया जाता है। They are being made aware about the fundamental duties as to what are their duties, and this is due to this judgment of the Supreme Court in Rangnath Mishra versus Union of India. Then again, there was one case of Javed versus State of Haryana, where the Supreme Court again held the same, that fundamental rights have to be read with फंडामेंटल ड्यूटीज की। फंडामेंटल राइट्स को आप अकेले मत पढ़िए, आप उसको फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ पढ़िए, उसको आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के मतलब संविधान के और प्रोविजंस के साथ मिला के पढ़िए। ये केस अपने आप में था कि जो पंचायत सिस्टम चल रहा था या अभी चल रहा है हरियाणा में, एक स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो इलेक्शन में, पंचायत के इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते हैं, एंड दैट वाज चैलेंज। द कोर्ट हेल्ड दैट दिस इज अ गुड लॉ। अभी यूपी में भी ये लॉ आ रहा है, अभी तो बिल पड़ा हुआ है, उस पर बहुत से काम होने हैं, लेकिन हरियाणा में ये लॉ अपने आप में आ चुका है। और इसमें कोर्ट ने भी कह दिया कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में कहीं दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन उसको हमें फंडामेंटल राइट्स के साथ पढ़ना चाहिए। हमें अपने एक जो चीज़ें हैं वो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सोसाइटी में, उनको इकोनॉमिक जस्टिस मिल सके, सोशल जस्टिस मिल सके। हाउ इट कैन बी पॉसिबल इफ देयर वुड बी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, एंड इन दैट वे सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि जो भी प्रोविजंस हैं उनको मिलजुल कर ही पढ़ना चाहिए, एंड दिस हैज़ टू बी ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। देन रिगार्डिंग एनवायरमेंट पे सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने काम किया कि किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको सेव किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ही एक एडवोकेट हैं MC मेहता, जो लोग लॉ की फील्ड से नहीं हैं उन्होंने भी उनका नाम सुना ही होगा, कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी केसेस, मैक्सिमम केसेस, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सभी केसेस, लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैव बीन फाइल्ड बाय MC मेहता। और उन्होंने किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से रोकने के लिए हर लेवल पे जाके सुप्रीम कोर्ट में अपने रिट पिटिशंस फाइल किए, और हर किसी में उनको सफलता मिली है, सो दैट वी कैन प्रिजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट, सो दैट वी कैन मेंटेन द हेल्दी इकोलॉजी in the society. And be it the case of the air pollution, be it the case of the CNG, working of the use of the CNG in the motor vehicles, the air pollution, the noise pollution, the Taj case and many more cases। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि MC मेहता के नाम से वो केसेस सब सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपने डिसीजन भी दिए हैं। यहाँ तक कि वन ऑफ द केस ऑफ द MC मेहता वाज रिलेटिंग टू दैट the educational institution should organize 1 hour lecture on how to protect the and to preserve the natural environment। तो अभी आप देखें कि UG लेवल पर, यूनिवर्सिटीज़ में UG लेवल पर एनवायरमेंट से रिलेटेड एक पेपर जो है वो अपने आप में कंपलसरी किया गया है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन MC मेहता that every student must know how to protect, how to preserve the natural environment, and this is the part of their syllabi in the course, that they have to read one paper on environment। So this is a great contribution, I should say, बहुत बड़ा एक contribution है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के टुवर्ड्स MC मेहता का, कि एनवायरमेंट पोल्यूशन को किस तरीके से प्रिजर्व किया गया है, किस तरीके से प्रोटेक्ट किया, उसको एनवायरमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है, पॉल्यूशन को किस तरीके से हटाने की बात कही गई है। दिस इज बिकॉज ऑफ द जुडिशियल डिसीजंस थ्रू MC मेहता जजमेंट। देन रिगार्डिंग नेशनल एंथम, कुछ चीज़ें तो अभी 2018 में भी कंट्रोवर्शियल हुई थी। सभी को मालूम होगा दैट इनिशियली देयर वाज अ सिस्टम ऑफ दिस showing this national anthem in the picture hall, सिनेमा हॉल्स पे पिक्चर जाते थे सिनेमा हॉल में, तो एक नेशनल एंथम बजता था,
and at that time we have one of the duty, the very first duty, to respect our national anthem and national flag. तो ऐसी स्थिति में अभी लोग जा रहे हैं, सेटल नहीं हो पा रहे हैं, कोई उठा है कोई बैठा है, तो वो प्रॉपर तरीके से रेस्पेक्ट नहीं हो पा रही थी नेशनल एंथम की। देन श्याम नारायण चौकसी का जजमेंट आया और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको किस तरीके से रेस्पेक्टफुली इसको आप अगर चला सकते हैं देन इट्स ओके। शुरू में 2 जजमेंट थे इसमें, पहले में तो ऑर्डर दे दिया कि हर किसी को खड़ा होना है, बाद में ये हुआ और साथ में ये भी कह दिया कि जिस समय नेशनल एंथम चल रहा है उस समय पिक्चर हॉल में जो एक्सिट डोर्स हैं या एंट्री डोर्स हैं उनको क्लोज कर दिया जाए, उसमें चटकनियाँ लगा दी जाएँ, इस तरीके के कुछ डिसीजंस आ गए थे। लेकिन बाद में उसका रिव्यू जब हुआ तो द पर्सन्स हु आर डिसेबल्ड, जो खड़े नहीं हो सकते हैं, या फिर एक उपहार सिनेमा का कोई एक जजमेंट आया था दिल्ली में जहां आग लग गई थी, तो उसके बाद से था कि अब जो बोल्ट है उसको नहीं लैच नहीं किया जाएगा, वो खुले रहेंगे दरवाजे, सो दैट द एक्सेस में नॉट बी रिटेन रेस्ट्रिक्टेड। तो ऐसी स्थिति में देखते हुए उसको फिर मॉडिफाई करके अपना जजमेंट आ गया। साथ ही साथ क्या राष्ट्रगान गाना जरूरी है या नहीं जरूरी है, अगर आप रेस्पेक्ट में केवल खड़े हुए हैं, आप गा नहीं रहे हैं, तो क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन है या नहीं है, या आपका जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका वायलेशन है या नहीं है। तो विजय एमैनुअल का केस था, जिहोवा कम्युनिटी को बिलोंग करते थे एंड दे वर नॉट सिंगिंग द नेशनल एंथम ड्यूरिंग स्कूल, इन द स्कूल। जब स्कूल में सुबह प्रेयर हो रही थी नहीं गाया, तो द डिसीजन वाज दैट दे आर शोइंग रिस्पेक्ट for the national anthem, then it is not material whether they are singing or not। अगर वो गा रहे हैं तो ठीक है, नहीं गा रहे हैं तो ठीक है, but they are not disrespecting the national anthem। तो इस तरीके के भी जजमेंट्स आए। साथ ही साथ एक केस आया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल का, कि जो नेशनल फ्लैग है वो हम अपने घर में लहराना चाहते हैं, वी वांट टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग इन आवर होम। तो कोर्ट ने अलाउ किया बट सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, की ये कोर्ट्स हैं, ये गाइडलाइंस हैं, ये स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, इफ यू फॉलो दिस गाइडलाइंस देन यू कैन होइस्ट द नेशनल फ्लैग इन योर हाउसेस। तो अपने घरों में भी, अपने बिल्डिंग्स में भी आप अपने नेशनल फ्लैग को लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। देन रिगार्डिंग विमेन डिग्निटी की अगर हम बात करते हैं तो विशाखा का केस बहुत इम्पॉर्टेंट है, विशाखा वर्सेस राजस्थान। ये इसलिए भी मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि सभी हायर एजुकेशन में हैं, और ये एक वर्किंग वुमेन के सेक्सुअल हरासमेंट का केस था, और उससे रिलेटेड आप सभी को जानकारी होनी भी चाहिए कि जिन जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप हैं, क्या आपके यहाँ वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। अगर नहीं बनी है तो वो अपने आप में गलत है। तो ये विशाखा का केस तो 1996 का था, लेकिन उसके बाद 2013 में एक्ट भी बन गया है, विमेन सेक्सुअल हरासमेंट, वर्किंग वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट रेड्रेसल प्रिवेंशन एक्ट। तो उसके तहत अब हर इंस्टीट्यूशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का होना जरूरी है, एंड दैट इज जस्ट टू protect the, or just to preserve the dignity of the women. It's not confined to the working women, but it is for the dignity of the women. So this is one of the duty, जैसा कि मैंने कहा 51AE 2 पार्ट्स में कम्युनल ब्रदरहुड की बात करती है और एक हार्मनी की बात करती है। सेकंड पार्ट जो उसका है वो वुमेन की डिग्निटी का बात करता है, टू रेनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो उस डिग्निटी को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए ये केस विशाखा का केस था, तो जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शंस दिए, और यहाँ तक कि इसको जुडिशियल लेजिस्लेशन कहा जाता था इस केस को, कि जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगी तब तक हमने जो डायरेक्शंस दिए हैं वही कानून है, उनको फॉलो किया जाना चाहिए। So the list is very long, where the Supreme Court has done a great job for doing this fundamental duties activate through its judgment. And we see that it is the citizens who are under the constitutional obligations to perform these duties, so know what their duties are. It is important for those persons, it is important for the citizens of the country. अभी 2020 में एक मेघालय हाई कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें जस्टिस सेम थे, एंड ही वाज वेरी पेन्ड, और पेन होना भी चाहिए कि हमारे संविधान को लागू हुए 70 से ज़्यादा साल हो गए हैं, और उस समय भी अगर कोई ये कहे कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है इसको हम नहीं जानते हैं, तो अपने आप में दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी I mean disgustful, I should say, कि अपने आप में disgusting है ये कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं जानते हैं। एंड दिस वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ जस्टिस सेन
that until and unless a person is aware of his or her duty, he or she cannot claim to enjoy the fundamental rights. आप fundamental rights कैसे जानते हैं अपने, जब आप fundamental duties को नहीं जानते हैं? आप हर बार राइट्स की बात करते हैं, तो राइट्स की बात करना अपने आप में ठीक नहीं है। आपको अपनी ड्यूटीज के बारे में भी सोचना चाहिए। तो आपकी ड्यूटीज पहले आती हैं, आपके राइट्स बाद में आते हैं। सो वी नीड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, and only then we can make our nation to survive. We can make our nation to achieve those heights which are required. So environment pollution has become a great concern, cause of concern. We all must know and we all must think about. हम सबको सोचना चाहिए सबसे पहले जो हमारी कलेक्टिव ड्यूटी है एनवायरमेंट के लिए कि हम उसे कैसे सेव करें. So this is important one, and these duties remind us to keep the environment free from any type of the pollutants. There should not be any pollution. तो हमें उसमें किस तरीके से काम करना है, हमें उसको कैसे सेव करना है, ये हमारी अपनी ड्यूटी बन जाती है और इसके लिए हमें काम करने चाहिए. देन एट द सेम टाइम वी थिंक दैट द इंक्लूजन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द चिल्ड्रन टू एजुकेट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी. तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अपने आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं, जो उनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं अगर हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है उसमें, तो हम अपना वो कंट्रीब्यूशन दिखा दें कि हाँ हम बच्चों को पढ़ने के लिए, बिकॉज विदाउट एजुकेशन इट इज़ वेरी, आई मीन it would become very, I mean, uneasy for the others. ये दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है कि जब तक हमारा हर भारतीय नहीं पढ़ा होगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, आगे देश को कैसे बढ़ाएगा. तो द right to education, or this opportunity rather I should say, opportunity for education to the children as a fundamental duty is a big step, which is relating to make our nations strive for development. And if these type of the social injustices are being done, then it should be abolished. अगर किसी को स्कूल जाने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो as a fundamental duty, it's a duty of the parent and the guardian only. But as a citizen, we can also perform that duty to send a child to the school if there is no parent, if there is no guardian of that child. Or we can teach. As a teacher, we can teach, we can do something for that children. This is a duty which we must keep in mind while performing our duties. Then because the idea behind this incorporation of the fundamental duties, it was just to remind the citizens of the country that they have certain obligations towards the country, towards the society. तो मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को, मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी. इससे कहीं ज़्यादा बढ़ के सोसाइटी की तरफ भी हमें अपनी नज़र दौड़ानी है, हमें आगे बढ़ना है. And with that, I should say that the importance of the fundamental duties are not only confined to perform the duty which affects oneself, but which are more and more precious for the development of the society or for the country as a whole. So we should think about the additional duties for ourselves also regarding duty to help the persons or the accident victims. एक्सीडेंट अगर साइड पे कोई पड़ा हुआ है तो आज की स्थिति क्या होती है, हम यही कह के निकल जाते हैं ना कि अगर हमने इसको देख लिया, ले गए या मेडिकल हमने इसको एड दिलवा दी, तो फिर कल को कोर्ट और कचहरी के चक्करों में पड़ जाएंगे. सो फॉर योर इंफॉर्मेशन, नाउ देयर आर डायरेक्शंस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो that if a person who has got met some accident और दूसरा उसको कोई ले जाता है, उसको हेल्प करता है, तो पहले तो ये होता था पुलिस जो है FIR लिखी या नहीं लिखी या कौन लेकर आया, इस तरीके की चीज़ें. तो अब ये सब चीज़ें अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं रही हैं. If the person is being taken to the medical facility, that is the duty and that has to be done first before anything in that way. तो आप इसको भी देख सकते हैं कि जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उनको किस तरीके से as a good Samaritans of the society, how we can help them as a bystander on standards on the road, हम उसको भी देख सकते हैं, हम उसको भी अपना सकते हैं. Then our duty is just to keep clean our premises. हम अपनी premises को जहाँ हम रह रहे हैं उसके आसपास भी हम कैसे उसको क्लीन कर सकते हैं, ये भी हमारी ड्यूटी होती है. And very recently I think that all of you must also be having some of the programs in your
educational institutions that is related to the Swachh Bharat mission. तो हम क्यों कर रहे हैं ये स्वच्छ भारत मिशन? जस्ट टू क्लीन आवर एनवायरनमेंट, जस्ट टू क्लीन सेव आवर नेचुरल एनवायरनमेंट. तो जो स्वच्छ भारत मिशन है, जो 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया, लॉन्च किया गया प्रोग्राम, नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उनके द्वारा, दैट इज जस्ट टू अपहोल्ड द ड्यूटी एज ए correlative of Article 21, right to life and personal liberty, because that includes the right to clean environment. जब क्लीन एनवायरनमेंट हमें कैसे मिलेगा? व्हेन वी विल गो फॉर दिस स्वच्छता और क्लीनलीनेस. तो दिस स्वच्छ भारत मिशन दैट फोकसेस ऑन बिल्डिंग ऑफ टॉयलेट्स एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी प्रेमिसेस को क्लीन करने के लिए हैं. तो दिस कैन ऑल्सो बी थिंक एज ए ड्यूटी ऑफ द सिटीजन. देन वी कैन ऑल्सो गो फॉर ए ड्यूटी टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस, कि जहाँ कहीं भी अन्याय हो रहा है उसके अगेंस्ट में भी हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, और वो हमारी एक ड्यूटी की तरीके से ही हम उसको एक इम्पॉर्टेंस दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ पॉक्सो, एक एक्ट आया 2013 में, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट. तो दैट इम्पोजेज अ ड्यूटी ऑन द सिटीजन्स टू रिपोर्ट ए सेक्सुअल ऑफेंस इफ इट इज़ बीइंग डन, इफ इट इज़ बीइंग कमिटेड. तो वो स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ पीपल हैं कि अगर कोई इस तरीके की ऑफेंसेस हो रही हैं और कोई व्यक्ति उसको देख रहा है तो उसको पुलिस में उनको रिपोर्ट करना चाहिए. अदरवाइज ऑल्सो एज ए citizen of the country, this is a duty of every citizen that if there is something wrong, if injustice is going on, then he or she must report to the authorities concerned. Similarly, domestic violence का केस है, अगर domestic violence हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट भी की जानी चाहिए. अगर जिसके साथ हो रहा है वो अगर अप्रोच नहीं कर सकते हैं तो दूसरे उसको अप्रोच कर सकते हैं. देन the non-enforceable and non-justiciable nature of the duties is not to be taken as an excuse कि अगर ये enforceable नहीं है या justiciable नहीं है तो ये कोई excuse नहीं. हमें इसमें अपने को आगे बढ़ाना है, हमें देखना है कि किस तरीके से इन ड्यूटीज़ को हम फॉलो करें और इनको परफॉर्म करें. बिकॉज इफ वी विल परफॉर्म आवर ड्यूटीज़ then only will have the nation to develop. तो जो एक लबोलवाब है इस फंडामेंटल ड्यूटीज का वो सिर्फ ये है कि नेशन को किस तरीके से डेवलप होना है. हमें ये चीज़ें रिमाइंड करानी है एज ए सिटीजन that they should be conscious about their duties. They should be conscious to perform their duties. If they are enjoying their rights, they must also perform their duties. And this is how we can make these fundamental duties very important, though it is not executable, though it is not enforceable in the court of law. Then there are certain points also which I should say that which are not very clear in the duties. जो 10 ड्यूटीज मैंने आपको बताई उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी आई जो ड्यूटीज वेग लग रही हैं या एम्बिगुअस हैं या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉमन मैन. फॉर एग्जांपल आई हैव टोल्ड यू दैट टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ द लाइफ, जो 51A(j) है उसमें एक ड्यूटी दी गई है ये हर किसी को. तो in a country like ours, when we say that a big number of the population is belonging to the poor class, so how they would strive towards excellence living their day-to-day earning for basic needs. तो कहीं कहीं कुछ problems हैं, but we have to think about that, and in that way, in this excellence to strive towards this excellence, we have to think not individually but collectively, as I told you earlier also. And may I continue? Yes, ma'am. Then you see the words like harmony, ideals, institution, humanism, scientific temper. These are some of the words which some of the critics says that these are the words which are vague in nature. These are not clear. ये अपने आप में बहुत स्पष्ट नहीं है. हम किस तरीके के ब्रदरहुड की बात करते हैं. वो जैसा मैंने कहा कि क्या हम किसी में ये इंस्टिल कर सकते हैं कि ये भाईचारा फैलाया जाए, क्या हम किसी में साइंटिफिक टेम्पर इंस्टिल कर सकते हैं. जब तक हमारी अपनी इच्छा नहीं है, जब तक हमारा इनर कंसाइंस उसको आगे नहीं ले जा रहा है, तो हम उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं. सो these are the points which are not easily understood by the performers, that is we the citizens.
जो एक कॉमन लेवल पे अगर हम बात करें, क्योंकि भारत में जो हमारी नागरिक संख्या है वो बहुत बड़ी है और ये ड्यूटीज जो हैं वो सभी नागरिकों के लिए हैं, ये किसी एक क्लास या एक किसी एलीट ग्रुप के लिए कन्फाइंड होकर नहीं रही है, ये सभी के लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना होगा दैट हाउ दीज ड्यूटीज आर अंडरस्टूड बाय दीज सिटीजन्स who are really poor, who are in need of their bread and water, who are in need of the work, who are in need of the shelter, how they can think of all these things. तो उसके लिए हमें क्या प्रयास करने हैं, we have to think in that point also, and this has to be thought about, or these things are also to be thought about by the interpreters of these duties, whether they are the executive, they are the judiciary, they are the legislatures, तो उनको भी सबको इस तरीके से देखना है, सोचना है. So finally, I would say that the duties which we are talking about regarding the fundamental duties, they are significant part of the Constitution. As you all know that the Constitution of India, that is the supreme law of the land, and it is the world's longest and largest written constitution. And in the present context, अभी हम वर्तमान की स्थिति में देखें, it is important to inculcate and to instill the civic obligations and duties among all the citizens. जरूरी है कि हम हर किसी भारत के नागरिक में इन ड्यूटीज़ को एक इंस्टिल करें, उनके अंदर इन सब चीज़ों की बातों को लेकर आएँ कि उनके भी कुछ सिविक ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ पॉलिटिकल ड्यूटीज़ हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं which they have to follow. And to achieve this objective or to achieve this object, we have more and more emphasis has to be given on the performance of the duties that need to be ensured. हमें ये ensure कराना होगा कि वो अपने duties का performance और perform किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, because excessive emphasis on the exercise of fundamental rights, you see everywhere when we are talking about the duties, fundamental rights are the part of that because these are corresponding to each other. So we should not give excessive emphasis on the exercise of fundamental rights, but to the फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो. क्योंकि अगर जुडिशरी में भी हम देखें तो जैसा मैंने कहा कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक बहुत छोटा सा राइट है आर्टिकल 21 में, लेकिन वो इतने अच्छी तरीके से इंटरप्रेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उस लाइफ एंड लिबर्टी में वो सारी चीज़ें उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर ली हैं या पढ़ ली हैं इंटरप्रिटेशन के द्वारा, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं. यहाँ तक कि सोने का अधिकार, खाने का अधिकार, गर्मापूर्ण अधिकार, एनवायरमेंट पॉल्यूशन फ्री रास्ते का राइट टू रोड, इस तरीके के जो अधिकार हैं वो सब लाइफ एंड लिबर्टी के साथ इनकॉर्पोरेट हो गए हैं, इंटरप्रेट हो गए हैं. सो emphasis is not now required for enlarging the fundamental rights, but to have the awareness and ensuring the fundamental duties, the civic duties, the civic obligations. And we see that though the codification for this civic obligation is not required, but these has to be made, proper awareness programs are to be made, and fundamental duties can be said to be a core of the mutual coherence of the welfare state like ours, जहाँ हमारा स्टेट है एक वेलफेयर कंसेप्ट के साथ चलता है, और उस वेलफेयर कंसेप्ट में एक म्यूचुअली हर किसी के साथ में हम अगर लेके चलते हैं म्यूचुअली, तो हम जानते हैं कि हम वेलफेयर में किस तरीके से एक दूसरे के वेलफेयर में किस तरीके से काम कर सकते हैं. तो जब काम करना है वही हमारी ड्यूटी है. ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक आई एम वेरी सैड टू से दैट दिस ड्यूटी परफॉर्मेंस वाज मिसिंग एट लार्ज. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर तरफ से ये मिसिंग था, लेकिन अगर लार्जली देखा जाए तो ये मिसिंग था कि जो डॉक्टर्स हैं दे आर हेल्पिंग, बट द केमिस्ट द पर्सन्स दे आर नॉट गिविंग द मेडिसिन प्रॉपरली एट टाइम. उसमें भी इतनी काला बाजारी हो रही है. एक एक इंजेक्शन जो कि 100 रुपए का मिल सकता था वो हजारों का मिल रहा है. ब्लैक मार्केटिंग हैज बीन इंक्रीज. So whether this is the part of the welfare state like ours, it is not. So we have to think in that respect that the fundamental duties, which is our duties, we have to perform those duties, so that we need to work in harmony. हमें harmony के साथ बात करना है, assuming the responsibility of ours towards the welfare and the security of the nation, security of our fellow being, जो हमारे साथी हैं उनके बारे में हमें सोचना है. So harmony के लिए हमें क्या करना होगा? We have to think about the fraternity. Fraternity being a
फीलिंग एंड द इनर कंसाइंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये किसी लॉ के द्वारा, किसी कॉडिफिकेशन के द्वारा, किसी जुडिशियल जजमेंट के द्वारा एनफोर्स नहीं कराई जा सकती। जो फ्रेटर्निटी है उसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। दिस इज समथिंग विच हैज टू कम आउट फ्रॉम अवर इनर कंसाइंस। हमें अपने आप से सोचना पड़ेगा कि हाँ, अगर हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमारे एक एक्शन से, हमारी एक एक्टिविटी से कुछ सुधार हो सकता है, देन वी मस्ट डू दैट, बिकॉज neither can a codification nor can be any law or judicial judgment can enforce these duties, but we can encourage by leaving the personal gratification। जो हमारे पर्सनल ग्रीड है, जो हमारी पर्सनल चीजें हैं, जो हम इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं, हमें उस इंडिविजुअलिज्म से बाहर आके हमें कलेक्टिवली सोचना है, and then only we can think of performing our duties। Otherwise, the things which have been incorporated in the Constitution in 1976, that would continue to be like that. There may be various legislations, there may be various codifications, there may be various judgments, but the result would become zero, because this is what we all have seen ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड ऑल्सो। मतलब ये तो एक उदाहरण है, ऐसी कई चीजें होती हैं जब हम देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सोचना है इसके बारे में कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। अगर हम इस चीज पर ध्यान देंगे तभी इस फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई कहना चाहिए कि उद्देश्य सार्थक होता है। अदरवाइज जैसे और क्लासेस होते हैं हम उसी तरीके से इनको भी फॉलो कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम इस पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर काम करें। ठीक है, अगर हमको लगता है कि हमें कुछ इससे सबक लेना चाहिए तो नेचुरल है कि हम इसको सबक लेकर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, अपने देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने इंस्टीट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, उसके बाद हम अपने देश के नाम से जाने जाते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग टुवर्ड्स those authorities, those institutions by whose name we are being renowned, जिसके नाम से हम जाने जा रहे हैं, जिसके नाम से हम प्रसिद्ध हो रहे हैं, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो दिस इज अवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी। एंड जिस कंट्री में हम हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से हम गवर्न हो रहे हैं, अगर हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, then it is a big failure of the system, which I think that it should not be, because constitution is running for the last more than 70 years and it will have more and more life in future also. So with these words I would say thanks for the patience